Assalamu alaikum, dear students. So in previous lecture of this series, Human Physiology, we discussed about the different organs of digestive system, wherein we discussed that the digestive system has two types of organs. One are the primary digestive organs, another set is that of the accessory digestive organs. In primary digestive organs are those organs, they include those organs which are involved, where the actual process of digestion takes place. जहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन होगी, जहाँ पर एक्चुअल ब्रेक डाउन होगा, उनको हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहेंगे. एंड द अदर ऑर्गन्स विच हेल्प the primary digestive organs to bring about digestion of food, to bring about breakdown of food, those are called as accessory digestive organs. In today's lecture, we will discuss about the structure of the alimentary canal, and in this structure of alimentary canal, first we will discuss about the histology of gut or histology of alimentary canal. As I mentioned in previous lecture, that alimentary canal, it extends from mouth to anus. This alimentary canal is a tube-like structure. If you can see here in this diagram, this is the gross structure of an alimentary canal, of digestive system rather. And you can see here from that digestive system, it starts from the mouth. So this here, this transverse slit-like cavity is what is called as mouth. Mouth then leads to a cavity which is called as buccal cavity. So this structure here, this space which is present beyond this mouth is called as buccal cavity. Buccal cavity. Then the next part of our alimentary canal is our pharynx. So here this part is called as pharynx. Pharynx is then followed by a tube-like structure again. This tube, 25 centimeter long tube, is what is commonly called as food pipe, or technically it is called as esophagus. Esophagus then enters into the abdominal cavity by piercing the diaphragm. Diaphragm is a special type of septum which separates thoracic cavity from the abdominal cavity. This diaphragm has an opening here, a hole here, which is called as hiatus. This esophagus, it passes through that hiatus and enters into abdominal cavity, where it gets enlarged and forms what is called as here, this is called as the stomach. So this is here stomach. And this structure here is diaphragm. This is diaphragm. Then the next part of alimentary canal is the small intestines. Now these small intestine have different parts. Say for example, this C-shaped part of small intestine, this is called as duodenum. Duodenum. Then it is followed by other parts of small intestine. These are the small intestines, which ultimately, these are small intestine or intestine. They then enter into another part of intestine where diameter is a bit wider. This part of alimentary canal is called as large intestine. Large intestine. Large intestine has its parts. Say for example, the first part which receives this what is called as small intestine, or the ileum part of small intestine. This ileum part enters into large intestine. This part here is called as cecum. Cecum. From cecum arises a finger-like elongated part, finger-like thin elongated portion, which is called as vermiform appendix. Vermiform appendix. Then the cecum, it then ascends upwards
into a part of intestine which is called as ascending colon. So this part, this entire is the colon, large intestine, and this part of intestine colon which ascends upwards towards abdominal cavity, towards diaphragm. This cavity, this portion is called as ascending colon. So this entire part will be called as ascending colon. Then this ascending colon, it then moves horizontally. This portion of colon is called as horizontal colon, or it is also called as transverse colon. So here I will write it. This portion is called as transverse colon. Then this colon, it descends downwards. So accordingly, this part of colon is called as descending colon. Descending colon. Then it forms an S-shaped curve. That S-shaped portion of colon here is called as sigmoid colon. And finally, the terminal part of this colon, this part is called as rectum, and this rectum leads to exterior by means of an opening. This opening is called as anus. It leads to anus through a canal. This portion, this canal is called as anal canal. Anal canal then opens to outside by means of an opening, which is called as anus. So I will again repeat the different parts of our digestive system. The first, the primary part is primary digestive organs. They will include, first they will begin from mouth, then we have buccal cavity, then we have pharynx, esophagus, stomach, small intestine, which includes duodenum, jejunum, and ileum parts. These are the small intestine which are present in the abdomen. Then we have the large intestines. Large intestine begins from cecum. Then we have ascending colon. Then we have transverse colon. Then descending colon. Then sigmoid colon. This is followed by rectum, anal canal, and finally the anus. These were the primary digestive organs. These are the sites where actual digestion takes place. ये वो organs है जहाँ पर actual digestion होती है. इसके अलावा हमारे पास accessory organs भी होते हैं. Accessory organs कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए. Accessory organs पहले buccal cavity में हमारे पास आएंगे. Buccal cavity में जो tongue portion है, जो टंग वहां पर होगी, जीभ जिसको हम कहेंगे, दैट टंग पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, दिस इज एन accessory of what is called as digestive organ. इसी तरह से यहाँ पर ये जो ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं, ये एक मैंने यहाँ पर दिखाया है सैलिवरी ग्लैंड. इसके अलावा और भी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो हम बकल कैविटी का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मैंने यहाँ पर एक दिखाया है, इसके अलावा बहुत है और भी है. Say for example, this very gland is the salivary gland. This is salivary gland. This is actually the parotid salivary gland. So जो ये parotid salivary gland जो है, it opens into the buccal cavity where it helps in digestion of, say for example, carbohydrates. उसके बाद जो दूसरा accessory से हम digestive organ देखेंगे, that is our this liver. So liver में आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is liver, this very structure, greenish portion, greenish color का जो मैंने दिखाया है, this is liver. So liver is again our accessory digestive organ. इसी के साथ साथ जो इसमें लिवर में आप देखते हैं कि वहां पर एक येलोविश आपको ये रेडिश ग्लैंड दिखाई दे रहा है. दिस इज एक्चुअली द गॉल ब्लैडर. सो ये वाला ग्लैंड, दिस इज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर इज अगेन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हैं ये एक और ग्लैंड है. दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पैंक्रियास.
जो पैंक्रियाज है अगेन इट इज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो भी एसेसरी ऑर्गन्स हमने देखे दे आर प्रेजेंट आउटसाइड, दे मे बी प्रेजेंट आउटसाइड the digestive alimentary canal, but they play an important role. They help in the digestion of the food. They produce secretions. Their secretions help in digestion of the food. इसी के साथ साथ एक और digestive organ जो है या their digestive structures जो है they are the teeth. They are also located in buccal cavity, but they are regarded as accessory digestive organs. So ये हमारा था digestive system. Digestive system का एक broad overview जिसमें हमने दो तरह के digestive organs देखे, एक primary digestive organ और दूसरा हमने देखा second accessory digestive organs. अब हम बेटा ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। जो गट या एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरा आप एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे देख रहे हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल की एनाटमी, इसमें कौन कौन से लेयर्स, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उस पे हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में आप, दिस इज ए सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एक एलिमेंट्री कैनाल के एक पोर्शन का मैंने एक सेक्शन यहाँ पर बनाया है। तो मेनली जो भी हम एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम अगर हम माउथ से लेकर बिल्कुल एनस तक किसी भी पोर्शन को जगह अगर हम किसी भी पोर्शन का सेक्शन देखें और उसके बाद हम उसको स्टडी करें अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स उसमें देखेंगे विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। अब ये ट्रांसफर सेक्शन क्या है, मैं स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। ट्रांसफर सेक्शन से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये अभी एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब है, तो ये इस तरह से अगर हम अब इसका सेक्शन काटें, यानी कि ये वाला पोर्शन से फॉर एग्जांपल अगर आप कैरेट को लेते हो और उसको फिर गोल गोल जो हम स्लाइसेस बनाते हैं, तो वो गोल स्लाइस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन। इसी तरह से अगर हम ये एलिमेंट्री कैनाल उठाते हैं और उसी एलिमेंट्री कैनाल का अब हम एक सेक्शन देखते हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, कौन कौन से लेयर्स इसमें हैं, तो वो हम देखते हैं इस डायग्राम में, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि एक एलिमेंट्री कैनाल के ट्रांसफर सेक्शन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स which are present in our elementary canal when we view the transverse section of it। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला स्ट्रक्चर हम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हम देखेंगे, यानी अगर ये से फॉर एग्जांपल ट्यूब, ये ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब है, तो ये जो सेंटर में इसकी जो कैविटी आएगी दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। द इंटीरियर जो ये ट्यूब होगा, से फॉर एग्जांपल ये पेन है जो इसके अंदर ट्यूब है, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ दिस ट्यूब। इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा होता है, ये अंदर से जो इसकी कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो ल्यूमेन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर बाहर की ओर जाएंगे। इसका वॉल जो होगा हमें उसको स्टडी करना है, हमें इसके वॉल को देखना है कि उसमें कितने लेयर्स है, किस किस्म के लेयर्स है, किस किस्म की सेल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ल्यूमेन टू आउटसाइड इसमें ये स्ट्रक्चर्स है। नंबर फर्स्ट, पहला जो ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियम। तो ये वाला लेयर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस वेरी पोर्शन, यहां से अगर मैं इसको लूं तो ये सारा पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज म्यूकस लेयर, ये वाला पोर्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज म्यूकस लेयर। ये सारा दिस इज कॉल्ड एज म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर को दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोजा, इसको म्यूकोजा भी कहते हैं, म्यूकस लेयर। तो ल्यूमेन, द लेयर which immediately surrounds our lumen of our alimentary canal, that is called as mucus layer or mucosa। म्यूकोजा में आप देखेंगे it intern has following layers again from lumen to outside। कौन कौन सा लेयर है इसमें? जो पहला वाला लेयर आप देखेंगे, ये वाला लेयर, दिस लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लेयर ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एज एपिथेलियम, इसको हम एपिथेलियम कहते हैं। तो म्यूकोजा का पहला लेयर, ये म्यूकोजा सिर्फ एक लेयर का नाम नहीं है,
इट हैज सब लेयर्स, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और इस म्यूकोसा में वो वाला लेयर which will face lumen, which will immediately face lumen, that is called as epithelium. उसको बेटा हम कहेंगे epithelium. अब epithelium जो है वो कैसा होगा? That varies from one part of the alimentary canal to another part of alimentary canal. Say for example, alimentary canal हमने देखा, it extends from mouth to anus. ये सारा portion जो है it extends from here up to here. तो ये सारा पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल है, क्या सभी का एपिथेलियम एक जैसा होगा? नहीं. हम देखते हैं जो एपिथेलियम माउथ यहां पर होता है इस वाले पोर्शन में, दैट इज डिफरेंट देन व्हाट इज फाउंड इन अदर रीजन्स. से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं माउथ की, इफ आई टॉक अबाउट माउथ, या अगर हम बात करेंगे फेरिंक्स पार्ट की अगर हम बात करते हैं, इवन इफ वी टॉक अबाउट ईसोफेगस, तो ये रीजन्स जो एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं वहां पर अगर हम एपिथेलियम देखेंगे कि एपिथेलियम कैसा होगा, ये लाइनिंग कैसी होगी. दिस एपिथेलियम देयर इन दीज रीजन्स, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ये खास तौर पर नोट करेंगे हमारे नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो खास तौर पर इसको ध्यान में रखेंगे कि ये कभी कभार पूछा जाता है हिस्टोलॉजी में भी या टिश्यूज में भी, दैट द टाइप ऑफ एपिथेलियम विच लाइन्स आवर बकल कैविटी और विच लाइन्स फेरिंगस पार्ट और ईसोफेजियल पार्ट, वो कौन सा एपिथेलियम होता है. दैट एपिथेलियम इज एक्चुअली दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होगा? स्ट्रैटिफाइड मीन्स दैट दिस एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड. इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं. एक लेयर सिर्फ सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर ओनली, दे रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके अलावा और भी लेयर्स होते हैं, वन लेयर, अनदर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एटसेट्रा. जो टॉप मोस्ट लेयर इनका होगा, दैट टॉप मोस्ट लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ थिन polygonal and flat cells which is called as squamous, which are called as squamous cells. जो चूंकि ये मल्टी लेयर्ड है इसलिए बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड. चूंकि टॉप मोस्ट सेल्स जो है वो फ्लैट है, वो थिन है, वो पॉलीगोनल है, इसलिए उनको बोलेंगे स्क्वैमस. एपिथेलियम मतलब कवरिंग टिश्यू, क्योंकि ये कवर करता है हमारे माउथ को, हमारे फेरिंक्स को, हमारे ईसोफेगस को, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो पहला हमने देखा म्यूकोसा का पहला लेयर हमने देखा, दैट इज कॉल्ड एज epithelium. And this epithelium, nature of this epithelium in case of mouth, pharynx, esophagus, ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, इफ यू रिमेंबर. इसके अलावा जो सेकेंडरी इसमें एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, से फॉर एग्जांपल टंग, उसमें भी आप देखेंगे दैट इज आल्सो लाइन्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, रिमेनिंग पोर्शन अब क्या रहा? रिमेनिंग पोर्शन अब स्टोमक है, रिमेनिंग पोर्शन अब हमारा क्या नाम है इसका, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है. वहां पर जो एपिथेलियम होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम. वो स्क्वैमस एपिथेलियम वहां पर नहीं होगा, वहां पर कॉलमनर एपिथेलियम होता है. कॉलमनर एपिथेलियम और स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है? कॉलमनर एपिथेलियम में हम देखते हैं कि कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होती है दे आर टॉलर देन ब्रॉड. वो टॉल सेल्स होती है, कॉलम शेप्ड सेल्स होती है, इस तरह से दे आर कॉलम शेप्ड सेल्स. तो एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी दे आर टॉलर देन ब्रॉड. वी कॉल सच टाइप ऑफ एपिथेलियम एज कॉलमनर एपिथेलियम. सो कॉलमनर एपिथेलियम किस किस में होगा? इट इज फाउंड इन दैट पार्ट ऑफ alimentary canal which extends from stomach up to terminal part. जो anus तक जो भी portion alimentary canal का आएगा उसमें हम देखेंगे there the type of epithelium which is present here, the type of epithelium which is present in mucosa is the columnar epithelium. Columnar epithelium, why? Because that will be having the cells, shape of the cells will be column shaped. They will be taller than the broad, taller than broad. So they are column shaped cells. ये बेटा हमारा हुआ म्यूकोसा का पहला लेयर
दैट इज द एपिथेलियम। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेयर जो है वो आप यहां पर देखिए प्लीज। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट लेयर एपिथेलियम। तो उसके बाद बेटा हमारा दूसरा लेयर दैट इज इनर टू एपिथेलियम। अब हम यहां पर मैंने यहां पर लिखूंगा, अब दिस वेरी लेयर, दिस इज द एपिथेलियम। नेचर मैंने आपको बोला नेचर इज डिफरेंट। नंबर सेकंड, इनर टू दिस एपिथेलियम इज प्रेजेंट ए कनेक्टिव टिश्यू। ये पोर्शन आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज आवर कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया। दिस इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया। यहां पर देखिए, तो ये वाला पोर्शन जो आप देखते हैं, ये यहां पर जो मैंने ये दिखाया है कि एपिथेलियम में भी इवन फोल्डेड, एपिथेलियम जो अभी हमने डिस्कस किया ये फोल्डेड भी होता है। से फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में जो ये होता है वहां पर सर्क्यूलर फोल्ड्स इसके होते हैं। इसी तरह से स्टोमक में अगर हम बात करेंगे, एपिथेलियम में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स भी होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक रूगरी कहेंगे, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं हिस्टोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, हम हिस्टोलॉजी सिर्फ देख रहे हैं। तो हिस्टोलॉजी में मैं आपको कह रहा हूँ कि epithelium, inside this epithelium there is present a connective tissue, a loose type of connective tissue. This loose type of connective tissue is called as lamina propria. इसको हम lamina propria कहते हैं। lamina propria में क्या होता है? lamina propria में आप देखेंगे it possesses some fibrocystes. यहाँ पर कुछ सेल्स होती है जिनको हम फाइब्रोसाइट्स बोलते हैं। इस लैमिना प्रोप्रिया में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इम्यून सेल्स भी होती है, इम्यून सिस्टम की कुछ सेल्स होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे हियर देयर आर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस, यहाँ पर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली ये जो इम्यून से मैक्रोफेजेस वगैरह जो होती है, लिम्फोइड सेल्स भी होती है, लिम्फोइड सेल्स, दोज लिम्फोइड सेल्स आर इन पैच। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह स्पेशली, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर इस लैमिना प्रोप्रिया में कुछ लिम्फोइड सेल्स जो होती हैं वो एग्रीगेट बनाती है इस तरह से। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, सच एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के वो लिम्फोइड सेल्स जो ग्रुप्स में हो और किस वाले पोर्शन में हो, लैमिना प्रोप्रिया में, दोज आर कॉल्ड एज, उनको हम बोलते हैं पेयर्स, PAYER पेयर्स पैट्स। तो बेटा मैं कह रहा हूं आपको कि एपिथेलियम, इनर टू एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। दैट लूज कनेक्टिव टिश्यू, it contains different types of cells. It has fibrocytes, it has certain fibers as well, it has reticulin fibers, it has collagen fibers, and it has even lymphoid cells. Those lymphoid cells, in case of intestine part of alimentary canal, they are present in groups. Such groups of lymphoid cells are called as pairs पैट्स। बाकियों में क्या नहीं होता है, बाकी पोर्शन में भी होते हैं ये सेल्स, लेकिन उनमें वो ग्रुप्स में नहीं होंगे, दे आर इंडिविजुअली प्रेजेंट, वो आइसोलेटेड होती है, एक अलग दूसरी अलग, कोई ग्रुप उनमें नहीं होता है। सो दिस वाज अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ आवर म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस लेयर और म्यूकोजा, दैट इज लैमिना प्रोप्रिया। अब इसके बाद हमारा तीसरा लेयर है इसका। सो थर्ड लेयर आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। थर्ड लेयर में दिस इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस इंटरना। अब जो तीसरा लेयर आएगा, थर्ड लेयर, दैट इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस इंटरना। इंटरना में मैं आपको बाद में बोलूंगा इंटरना क्यों बोलेंगे इसको। मस्क्यूलरिस इंटरना, अगेन दिस इज प्रेजेंट नाउ इनर टू लैमिना प्रोप्रिया, क्योंकि हम कहां से मूव हो रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पहला एपिथेलियम, ये वाला लेयर, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला पोर्शन, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद
उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन है, दिस इज द मस्कुलरिस इंटरना। अब मस्कुलरिस इंटरना में क्या होगा, दिस मस्कुलरिस इंटरना हैज टू टाइप्स ऑफ मसल्स। यहां पर आप देखिए मस्कुलरिस इंटरना, तो ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूं, दिस पोर्शन हियर, दिस इज मस्कुलरिस इंटरना, दिस इज मस्कुलरिस इंटरना। अब इस मस्कुलरिस इंटरना में आप देखेंगे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मसल्स। कुछ मसल्स, अब यहां पर ये ध्यान देना है, हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में जो हम देखेंगे वहां पर आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल सर्कल की तरह दिखाई देंगी, और सर्कुलर मसल्स जो है वो आपको डैश डैश जैसे दिखाई देंगी। सो दिस ग्रीन कलर्ड these structures here are actually circular muscles, and circular muscles are longitudinal muscles because we are studying ट्रांसवर्स सेक्शन। ये ट्रांसवर्स सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से है, लेकिन जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो वो हमको सर्कल दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे, अब ये ध्यान में देना है कि कौन सा लेयर पहले आता है। सो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द फर्स्ट लेयर ऑफ दिस मस्कुलरिस इंटरना इज, ग्रीन वाला कौन सा है, इट इज शाबाश सर्कुलर मसल्स। तो ये वाला पोर्शन है, दीज आर द सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स कौन सी मसल है, जिनका ऑर्डर जो है वो सर्कुलर फैशन में हो। से फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, तो इनका ऑर्डर जो है सर्कुलर मसल्स इस तरह से होंगी, जो इस तरह से होंगी इस ट्यूब में, सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो पहला वाला लेयर, मसल लेयर which will follow this what is called as lamina propria, that will be those of circular muscles, green portion जो है circular muscles। इसी तरह से उसके बाद उसके बाहर की ओर जो लेयर होगा, this layer is that of longitudinal muscles। तो ये हमारे पास ये longitudinal muscles है। तो ये यहां पर मैं यहां पे दिखाऊंगा फिर से। सो फर्स्ट लेयर, यहां पर जो पहला लेयर होगा, पहला लेयर जो होगा that will be that of circular muscles, ये circular muscles है। दूसरा लेयर जो होगा that will be that of the longitudinal muscles, ये longitudinal muscles है। So this completes our first portion, first layer of this our alimentary canal or gut, that is the mucosa। This is the mucosa layer or mucus layer। मैं फिर से आपको ये रिकैप्चुलेट कराता हूं। हम पहला लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज एपिथेलियम। एपिथेलियम के बाद जो नंबर नेक्स्ट लेयर हमारा होगा, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया में कहीं कहीं पर आप देखेंगे कुछ ग्लैंड्स भी दिखाई देंगे। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्लैंड यहाँ पर दिखाया है, दिस इज एक्चुअली ग्लैंड। इट कैन इन स्टोमक इट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसी तरह से इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो सकता है, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम स्टोमक का अलग से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंटेस्टाइन का अलग से। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये फोल्डेड पोर्शन दिखाया है, दिस इज दैट ऑफ ग्लैंड। ये ग्लैंड है एक्चुअली, दिस इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो इन केस ऑफ स्टोमक, अगर हम स्टोमक की बात करेंगे इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे, अगर इंटेस्टाइन में है तो वहां पर हम इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहेंगे। सो वही मैं कह रहा था, दिस इज द सेकंड पार्ट, दैट इज लैमिना प्रोप्रिया। उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया में उसके बाद मस्कुलरिस इंटरना है, मसल लेयर है। मस्कुलरिस इंटरना में दो तरह की मसल्स होती हैं, एक सर्कुलर मसल्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपने देखा, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज म्यूकोसा। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे वाला पोर्शन। अच्छा बेटा, तो हमने अब पहला वाला लेयर देखा, दैट इज म्यूकस लेयर, दिस इज म्यूकस लेयर या म्यूकोसा। अब हम नंबर नेक्स्ट लेयर देखेंगे, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। पहला वाला लेयर कौन सा था, म्यूकस लेयर और म्यूकोसा, ये वाला पार्ट। अब इसके बाहर, इसके बाहर जो लेयर होगा, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये वाला यहां से यहां तक, दिस पोर्शन इज व्हाट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, दिस इज एक्चुअली अ कनेक्टिव टिश्यू। ये
कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें भी आप देखेंगे जिस तरह से आपने इस वाले लेयर लैमिना प्रोप्रिया में देखा था, लैमिना प्रोप्रिया थोड़ा सा पतला है होता है एज कंपेयर टू अ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होता है इट इज कंपैरेटिवली वाइडर, नंबर वन। नंबर सेकंड, इसमें आप देखेंगे हियर देयर आर प्रेजेंट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स जो यहां पर होंगी, से फॉर एग्जांपल दे विल बी रेटिक्यूलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स है फॉर एग्जांपल। यहां पर कुछ कोलेजनस फाइबर्स हो सकती हैं, जो कोलेजन फाइबर्स वगैरह होंगी। और इसमें मुख्तलिफ तरह की सेल्स होंगी, से फॉर एग्जांपल इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स होती हैं और मैक्रोफेजेस वगैरह इसमें भी, इस वाले लेयर में भी प्रेजेंट होती हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो होती है स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दिस म्यूकोसा इज द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स जो यहां पर होगा, प्लीज नोट दिस, जो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स हमारे म्यूकोसा में होता है, दिस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस, या इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज plexus of Remack और Remack's plexus। ये नेटवर्क ऑफ हमारे सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स अगर नर्वस सिस्टम के बाहर कहीं पर है, दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी कभार बोला जाता है इट इज द सेकंड ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि सबसे ज्यादा एज फार एज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर कंसर्न, द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन एनी सिस्टम other than nervous system, other than brain and spinal cord and other associated organs, उसके बाहर नर्वस सिस्टम के बाहर अगर कहीं पर नर्वस न्यूरॉन्स का नंबर है, दैट इज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहां पर एक, मैंने आपको बोला, एक नेटवर्क ऑफ दिस न्यूरॉन्स is present in this mucus, in the submucosa, and in this submucosa the nerve network that is present is called as Meissner's plexus, or it is also called as Remack's plexus or plexus of Remack। नंबर नेक्स्ट, अब तीसरा वाला लेयर जो हम अब डिस्कस करेंगे, द थर्ड लेयर विच इज प्रेजेंट outside or outside this year or towards outside will be this very layer, that is muscular layer। so ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे अब यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन, या अगर मैं आपको मार्कर से दिखाऊं यहां पर, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, जो ये वाला पोर्शन हमारा होगा, दिस ऑफ गट हियर इज कॉल्ड एज द मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि इसको मस्क्यूलरिस इंटरना यहां पर क्यों बोलेंगे? मसल्स चूंकि हम में अब दो जगह पर होती है एलिमेंट्री कैनाल में, एक हमने देखा था कि म्यूकोसा जो है उसमें भी मसल्स होती है, दूसरा हमने देखा कि जो थर्ड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है वहां पर भी मसल्स होती है। क्योंकि ये वाली मसल्स जो होती है वो ल्यूमेन से बाहर होती है, बहुत बाहर, इसलिए इनको हम बोलेंगे मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। अब ये वाली मसल्स यहां पर, ये वाली मसल्स क्योंकि ये ल्यूमेन के नजदीक होती है, दे आर मच क्लोजर टू द ल्यूमेन, therefore this group of muscles here is called as muscularis interna। While as the muscles which are located here, they are far away from the lumen, therefore this very layer of muscles is called as muscularis externa। muscularis externa में भी आप यहां पर देखेंगे, it is again formed of same types of muscles। कौन कौन सी मसल्स है यहां पर देखिए, जो मैंने ग्रीन ऐसे दिखाएंगे, these are again the circular muscles। उसके बाद आप देखेंगे ये वाली मसल्स ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रही है आपको, these are the longitudinal muscles। again arrangement is same, circular muscles inside, longitudinal muscles outside। यहां पर भी आपने वही देखा था, circular muscles inside muscularis interna में, circular muscles inside, longitudinal muscles outside। यहां पर भी आप सेम देखेंगे muscularis externa में,
सर्क्यूलर मसल्स इनसाइड, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटसाइड। लेकिन अब इस और इसमें मस्कुलरिस इंटरना और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में एक डिफरेंस है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ दिस सेकंड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ये वाला जो आपको रेडिश दिखाई दे रहा है, ये जो सेकंड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन न्यूरोफाइबर्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इन बिटवीन these longitudinal muscles and circular muscles, these are called as plexus, इसको हम बोलते हैं plexus of Auerbach, plexus of Auerbach, या इसका दूसरा नाम भी है, these are also called as or myenteric plexus, myenteric plexus, myenteric plexus। बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक हमारा होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक है, लेकिन जो स्टोमक है वहां पर एक मसल मस्कुलरिस एक्सटर्ना में एक्स्ट्रा है, वो बाकी किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के किसी पोर्शन में वो मसल नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे स्टोमक में, ओनली इन स्टोमक, एंड दैट मसल इज कॉल्ड एज ओब्लीक मसल, उस मसल को हम बोलेंगे ओब्लीक मसल। तो यहां पर अगर मैं तीसरा पार्ट अगर मैं दिखाऊं, द थर्ड पार्ट इज व्हाट आई कॉल्ड एज मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसमें से मैंने आपको बोला पहला लेयर इज दैट ऑफ सर्क्यूलर मसल्स, और दूसरा लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, longitudinal muscles, circular muscles, longitudinal muscles, in between, इन दोनों के बीच में there is a network of neuroplexus, neurofibers, यहां पर इस तरह से, this is called as plexus of Auerbach और myenteric plexus। इनकी फंक्शन क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, अभी हम एनाटॉमी ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं आपको कि इन केस ऑफ स्टोमक, ये बाकी सभी जितना भी एलिमेंट्री कैनाल हम देखेंगे एक्सेप्टिंग माउथ एंड फेरिंक्स, उनके बगैर जो भी पोर्शन हम देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस से लेकर एनस तक, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एक स्टोमक में यही स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टोमक में एक और लेयर होता है, स्टोमक हैज वन एडिशनल लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ओब्लीक लेयर। वो ओब्लीक लेयर कहां पे होगा? ओब्लीक लेयर जो होता है वो सर्क्यूलर मसल्स के नीचे होता है, मतलब इनर टू दी सर्क्यूलर मसल्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से सब जो है हमारा म्यूकस लेयर जो होता है, सब म्यूकोसा जो होता है, सब म्यूकोसा के बाहर इमीडिएटली जो लेयर ऑफ मसल्स स्टोमक में होगा दैट इज दी ओब्लीक लेयर। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ओब्लीक layer. So oblique layer of muscles, again you have to remember, this is only and only present in stomach. बाकी किसी part of alimentary canal में ये muscles नहीं होती है। Then we come to last part of this gut, last wall of gut, जो last layer of gut होता है, that is this outermost layer. ये वाला जो reddish portion का आप यहाँ पर देख रहे हैं, this part of gut, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज सीरोसा, इसको हम बोलते हैं सेरोसा। ठीक है, तो बेटा जो फोर्थ आउटर मोस्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं, सो आउटर मोस्ट लेयर में हमारा सीरोसा है, सो दैट फॉर्म्स द फोर्थ एंड फाइनल लेयर, इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज सेरोसा, इसको हम बोलते हैं सेरोसा। सेरोसा जो होता है यहां पर आप देखेंगे, इसमें जो बाहर वाला लेयर होता है दिस इज दिस, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, इसमें भी दो लेयर्स, विसरल पेरिटोनियम जो रेडिश पोर्शन आप देख रहे हैं, विसरल पेरिटोनियम, और विसरल पेरिटोनियम जो के नीचे थोड़ा सा पतला सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज सब सिरोसा। ठीक है, तो ये इसके दो लेयर्स है, ये वाला विसरल पेरिटोनियम वो स्ट्रक्चर है, विसरल पेरिटोनियम आप देखेंगे वो वाला पोर्शन है जिसमें आप देखेंगे which by virtue of which this alimentary canal remains suspended or it gets
अटैच्ड विद द बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के साथ जो जिसके साथ इसकी अटैचमेंट होगी दैट इज दिस विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो उसके नीचे एक और लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज सब सिरोसा। इसको हम सब सिरोसा कहेंगे। हम फिर से इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कौन कौन सा लेयर है। हम देखते हैं कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड आवर नाउ एलिमेंट्री कैनाल इज और वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दिस इज फॉर्म्ड ऑफ दी 4 लेयर्स। इसमें अब 4 लेयर्स हैं। बेटा यहाँ पर देखिए ये पहला लेयर है। हमारे अब 4 लेयर्स हैं। पहला लेयर ये वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज म्यूकोजा और दी म्यूकस लेयर। इसमें फर्दर 3 सब लेयर्स हैं। एक एपिथेलियम ये वाला पार्ट, दूसरा हमने देखा लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन, और तीसरा हमने देखा मस्कुलरिस इंटरना जिसमें हमने 2 तरह की मसल्स देखी, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद हमने दूसरा वाला पोर्शन देखा। ये वाला पहला था, अब ये वाला दूसरा है। दूसरा वाला पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। इसको हम सब म्यूकोसा कहते हैं। इट इज अगेन ए कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू में जिस तरह से बाकी कनेक्टिव टिश्यूज है उसी तरह से ये वाला कनेक्टिव टिश्यू भी है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स होंगी, इसमें मैक्रोफेजेस होती हैं, इसमें रेटिकुलर टाइप ऑफ फाइबर्स होंगी, कोलेजन टाइप ऑफ फाइबर्स होंगी, और इसके अलावा इसमें एक नेटवर्क ऑफ न्यूरोफाइबर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मीजनर्स प्लेक्सस और प्लेक्सस ऑफ रिमैक। ठीक है, इसका ये ध्यान रखिएगा ये कहां पर होता है। कभी कभार नीट में ये पूछा जाता है कि मीजनर्स प्लेक्सस कहां पे होता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड मस्कुलरिस इंटरना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस जो एक्सटर्ना और इंटरना के बीच में जो म्यूकस सब म्यूकोसा होता है वहां पर हमारा ये वाला नर्व कॉम्प्लेक्सस होती है दैट इज मीजनर्स प्लेक्सस। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है ये 3rd लेयर है। 3rd लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ अगेन मसल्स, एंड मसल्स जो यहाँ पर होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। ये सभी मसल्स जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए दीज आर स्मूथ मसल्स। Muscles are of 3 types: smooth muscles, striated muscles and cardiac muscles. लेकिन जो यहाँ पर ये मसल्स होती हैं दे आर स्मूथ मसल्स। सिर्फ कहीं कहीं पर से फॉर एग्जांपल फेरिंक्स के पार्ट में वहां पर आप देखेंगे वहां पर स्ट्राइटेड मसल्स भी होती हैं। इस बाकी जो भी पोर्शन हम देखेंगे ईसोफेगस डाउनवर्ड्स जो भी पोर्शन होता है वहां पर सिर्फ स्मूथ मसल्स ही होती हैं। फेरिंक्स पोर्शन में आप देखेंगे वहां पर स्मूथ मसल्स के साथ साथ यहाँ पर कभी कभार स्ट्राइटेड मसल्स भी होती है। बिकॉज जब हम स्वेलो कुछ चीज करते हैं, स्वेलोइंग इज इन द बिगिनिंग इट इज वॉलंटरी हम कुछ चीज स्वेलो कर सकते हैं। तो वॉलंटरी हम तभी स्वेलो करेंगे जब हमारे पास वॉलंटरी मसल हो। वहां पर वॉलंटरी मसल्स कौन होती हैं? दे आर स्ट्राइटेड मसल्स। तो यहां पर मैं बात कर रहा था दिस 3rd लेयर ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल और द गट ऑफ आवर गट this is formed of muscles. Again we have first circular muscles and longitudinal muscles, and in between these longitudinal and circular muscles there is present another the second nerve network. This is called as plexus of Auerbach or mind plexus या इसको हम plexus of Auerbach भी कहते हैं। Then we have finally the 4th layer। जो 4th layer जो होगा that 4th layer is called as cirrus layer। इस cirrus layer में भी 2 layers है। एक ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे visceral peritoneum, दूसरा अंदर से थोड़ा सा ये छोटा सा connective tissue layer जिसको हम बोलते हैं sub serosa। So with this we conclude this topic, this lecture, that is histology of gut or histology of alimentary canal. So I hope that आपको समझ में आया होगा। हमें अपने views से please give your feedback to it, and please if you like it please like this video and subscribe it.